Thank you so much for your patience. Gonna continue. Okay, so yes, we need to stay open for criticism. We need to stay open for our mistakes. Mistakes को own करना communication में बहुत important है, especially because we are all in learning phase. This life is meant to be a process. This life is meant for growth. हम कभी भी किसी एक point पे पहुंच के ये नहीं कह सकते that we have achieved everything. And same goes with communication. So you should be enough open for mistakes. And if somebody points out to you, somebody criticizes, please give it some time to think. थोड़ा सा एनालाइज करने से, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं और हम खुद भी ग्रो करते हैं और शायद किसी और की मुश्किल भी आसान करने का काम। Application in daily life is extremely important because our subconscious mind is basically based on the principle of repetition. हम कोई बात 4 दफ़ा अपने माइंड को बताएंगे तो अगली दफ़ा वो बात हमें खुद रिपीट करेगा. जस्ट इट टेक्स प्लेस इन ड्राइविंग कि शुरू में आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है और बाद में यू नो गियर कब लगाना है एंड ऑल अदर थिंग्स. Similarly, if for once you take the responsibility and tell yourself, I am not going to lose my temper over this person now. I am not going to lose my temper over this particular thing now. I am not going to shout now. एकदम से नहीं होगा. Gradually start telling these things to your subconscious mind. It is immensely powerful. You have an amazing tool. Don't neglect it. Tell your mind 4 times a day. 5th time आपका खुद mind आपको click करेगा गुस्सा करते हुए कि यार something is not right. Am I audible? Guys, am I audible? Yes. Okay, thank you, Madam. So yes, the 5th time your mind is going to tell you that you are not supposed to be angry over this person. You're not supposed to lose your temper. You're not supposed to shout and similar things. So this, the application of basic communication skills in daily life is so important because अगर आपको professionally communication में आप सफ़र कर रहे हैं या फिर आपके relationships बेहतर नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार इतनी बड़ी चीज़ें मैं achieve कैसे करूँ, तो start from the basics. Start from the tiny things that you need to improve about yourself. And that's how you can reach through. Now, the most important, the most interesting part, what you say versus how you say. 90% impact of our communication is created by our style of delivery, and that's the research. Please mute the participants, Madad. Thank you. 90% impact is basically created by our style of delivery. If I am conveying, if I'm talking about a declamation that says we are already dead, but we do not know it. अब मैं rostrum पे जाके आपको ये बात ऐसे बोलूँगी, we are already dead, but we do not know it. It's not going to be impactful. Let's try another way. We are already dead, but we do not know it. It is going to create impact. The pauses, the tones that are going to vary according to the situation is going to create an impact. कोई भी बात monotonous कही जाए तो attention grab ही नहीं करती. लगता है कि बस याद करके आ गए और कुछ लफ्ज बोल रहे हैं हमारे सामने. जबकि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में आप एनर्जी यूज करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में टोन अप एंड डाउन करेंगे, अपनी बात समझाते वक्त देखेंगे कि कौन से वर्ड्स, की वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, जिस पे आपको जोर देना है, तो दूसरा इंसान का माइंड उस पर क्लिक करेगा और आज नहीं तो कल उसके सबकॉन्शियस उसको याद दिलाएगा कि उस दिन मुझे मेरी दोस्त ने ये बात कही थी. आई शुड थिंक अबाउट इट. ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब उसका माइंड इस चीज को परसीव करेगा, इंपॉर्टेंट समझेगा. अगर स्टाइल इतना इम्पैक्टफुल होगा ही नहीं तो अगली दफा सोचने की बात तो आएगी ही नहीं. और इसी तरह जब रोस्ट्रम पे स्पेशली डिबेटर्स कैन रिलेट, अगर किसी की टोन बहुत हाई रहती है टोटल, बिकॉज डिबेट्स आर मेंट टू बी अग्रेसिव, स्पेशली उर्दू, आप उसकी बात समझ नहीं पाते. बहुत एनर्जेटिक होता है लेकिन you cannot relate because continuously somebody is shouting at a very high pitch. You are going to get sick of it. You are not going to be attracted.
इसीलिए अपनी बात करते हुए मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, किस चीज पे नोट्स हाई होने और किस पे लो। अगर मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ तो मैं हमेशा लो टोन से स्टार्ट करूँ, और फिर जो टैग लाइन या मेन लाइन है उस तक पहुंचते पहुंचते मेरे नोट्स हाईएस्ट पीक पे चले जाएंगे। तो बीच में जो ऐसे कीवर्ड्स या फिर अट्रैक्टिव फ्रेजेस पब्लिक स्पीकर्स हम यूज करते हैं, उस पर फोकस करने के लिए हमें अपनी टोन को हाई करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाने जाऊं, या मैं किसी इंसान की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करूं और मैं उससे एक अग्रेसिव मैनर में बात करूं, पैसिव अग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव, हाई पिच, he or she is not going to be soothed, he or she is not going to be comforted. आप इतने गुस्से में किसी को कितनी भी प्यार की बात कहेंगे, वो आपकी बात की तरफ नहीं होगा मुतवज्जो, he is going to feel disrespectful. इसी तरह इवन किसी को आप किसी से शिकायत करने जाएं, वो भी बात अगर आप बहुत गुस्से में बहुत हाई पिच पे कहेंगे तो कम्युनिकेशन इज नेवर गोइंग टू बी इफेक्टिव और फ्रूटफुल, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। शायद आपका गुस्सा और शायद आपके इमोशंस तो दे आर गोइंग टू फाइंड अ फ्लो, बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ रिजल्ट, इट इज गोइंग टू टेक यू in an even worse situation. So it's better that we should keep a control over our emotions as how and when do we have to actually use them. Do we actually have to utilize them? And access of everything is bad. जिस तरह जिंदगी मियाना रवि के प्रिंसिपल पे चलती है, उसी तरह कम्युनिकेशन में भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को एज पब्लिक स्पीकर जो हमारे मेंटर्स हैं बोलते हैं, किसी एक बात को कितनी बार आप रिपीट करो यार, चेंज करो, बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस ना हो किसी भी चीज की। इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक बात को आप सही तरीके से कहेंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। बाकी अगर इनइफेक्टिव वे में आप 100 दफा भी कह देंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। Excess of everything is bad. Just like in daily communication, we should always know the balance, and that is only possible when we have control over our mind and emotions. This is okay, a very important thing, communication. मैंने तो उसको अपनी बात समझाई थी, लेकिन वो समझा ही नहीं। मैंने तो उसको सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हुए, सारी टोन, सारी एनर्जी मैच करते हुए बात कही, पर उसने फिर भी नहीं सुनी। वेरी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, शायद हमारे सारे डिस्प्यूट्स इन पे बेस करते हैं, और उनको अवॉइड करने का एक बहुत छोटा और एक बहुत आसान और एक बेसिक तरीका ये है that you should always be curious, that you should always ask questions. अगर कोई इंसान आपसे आके कह रहा है that I have a terrible relationship with my boss and my my environment at my workplace is not suitable, you should ask why. क्यों? ऐसा क्या हुआ? आपको ऐसा क्यों लगा? क्या बिल्कुल सर्वाइवेबल नहीं है? Is it draining you? I mean, all these questions एक लाइन में तो नहीं कहे जाएंगे, obviously दूसरा इंसान भी पक जाएगा, लेकिन क्यूरोसिटी शो किया करें। बहुत अनवर्दी फील होता है अगर आपको कोई बात जाके, आप किसी को कोई बात जाके कहें, वो इंसान पलट के एक ये भी नहीं पूछा यार अच्छा ऐसा क्यों फील कर रहे हो। अगर कोई किसी को जाके यार टेरेबल डे, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसे सब ठीक नहीं हो सकता। पूछो तो बात क्या हुई, आस्क क्वेश्चंस। वी आर नॉट सपोज्ड टू make our ego so important that we lose our relationships, we lose our balance, we somebody else is lose that. We should always be curious. NLP या फिर माइंड काउंसलिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत यूजफुल जो टेक्निक है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। स्पेसिफिक होते होते इंसान अपनी बात खुद समझ जाता है कि क्या चीज उसको बॉदर करिए, बिकॉज एट टाइम्स यू आर सो लोडेड विद इमोशंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड वरीज दैट आप अपना खुद स्पेसिफिक मसला समझ नहीं पा रहे होते हैं। और स्पेसिफिक होने के लिए बहुत जरूरी है कि सवाल किए जाएं, जवाब ढूंढे जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Respect sorry, respect for other people's model of the world. If we log in today to the social media, Facebook, Twitter, Instagram, the most important thing that we come across is social beliefs, religious beliefs, political beliefs, full on cursing, disputes, abuses. तुम तो हो ही गलत अगर तुम इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो।
अगर तुम इस चीज के बारे में बात कर रहे हो, सो रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई सही होने की बात ही नहीं है, तुम्हें पूरी पूरी मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तो यू आर डूम्ड, जहन्नुम। नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मैं किसी के कितनी भी क्लोज हो जाऊं, नो मैटर हाउ मच आई लव देम, आई कैन नॉट मैच माई perspectives with them completely. They will always look at the world from their perspective. They will always have their opinions. मैं किसी की सोच पे काबू नहीं कर सकती. I cannot transform their mind and hold and completely control it. I should not even think of doing that. This is basic respect which lacks in our society. इसीलिए हम सब intolerant हो गए हैं, इसलिए रोज एक hashtag launch हुआ होता है किसी ना किसी के खिलाफ, पॉलिटिकल बिलीव्स हो, सोशल हो, रिलीजियस हो। आपको दूसरे इंसान को अपनी बात बतानी चाहिए जरूर। ओपिनियन समझाना एक आर्ट है, किसी पे थोपना नहीं, अपनी बात एक्सप्लेन करें जरूर, यू हैव द राइट, यू शुड डू दैट, बट यू आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट देम इनटू समबडी एल्स बिकॉज यू थिंक दैट वे। किसी भी एक डिस्प्यूट में, किसी भी एक आर्ग्यूमेंट में कभी भी एक इंसान कंप्लीटली सही और एक इंसान कंप्लीटली गलत नहीं होता। कुछ बातें आपकी सही होंगी, कुछ बातें उनकी, इसका रेशो वेरी कर सकता है। यू शुड रिस्पेक्ट इट। जो चीज आप सोच रहे हैं वो कंप्लीटली सही नहीं है, एंड ये चीज हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस विल लीड अस टू अनदर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम अपने दिमाग में एक ये सिनेरियो रख के किसी से बात करते हैं कि जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं बात सोच रही हूँ, सिर्फ वो ही सही है, तो ना हम उसकी बात समझ सकते हैं, ना हम अपनी बात समझा सकते हैं। देयर शुड बी अ म्यूचुअल पॉइंट जिसपे आप लोग अग्री करें। ओके यार, यू सपोर्टेड, इट्स ओके, बट यू नो दीज थिंग्स आर रॉन्ग अबाउट इट। अब वो इंसान अगर उससे अग्री नहीं कर रहा तो आपको अपने आप को मेंटली ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। You are not the center of universe, one of my very good friends told me. So you can explain them, you can try to make them realize. You cannot change them completely. Please accept it. Respect. किसी के ओपिनियन से रिस्पेक्ट करना, किसी के ओपिनियन को समझना, तभी वो इंसान आपसे ओपन हो सकता है। ये एम्पैथी का बेसिक लॉ है, वरना मेंटल हेल्थ भी एक जो स्टिग्मा ही रह जाएगा, और हम कितने भी हैशटैग और स्टेटस डाल लेंगे दैट आई एम ओपन फॉर कम्युनिकेशन एंड प्लीज मैसेज मी, प्लीज डीएम मी, इट्स वेरी नाइस, बट रिस्पेक्ट, प्लीज शो रिस्पेक्ट इन योर बेसिक वे ऑन सोशल मीडिया स्पेशली. We being extremely active on social media can only find blame game. We need to look across it. We need to look through it. बिल्कुल सही बात करनी चाहिए, लेकिन किसी को completely आप नहीं बदल सकते, ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए. Helping the ones, अच्छा, this is the purpose that I have soul, this is my faith, this is my belief, and I find it this way. कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप दूसरों को इमेंसली हेल्प कर सकते हैं. If you look around you, there's so much anxiety, so much uncertainty, so much, doubts, negativity, pessimism. किसी इंसान को सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका फील अच्छा कराने का ये है कि you should communicate to them in a good way. उनको वर्दी फील करवाएं, उनकी बात सुने, उनकी बात समझें. You can honestly save lives with this very simple tool. और इसका आपको क्या फायदा होगा? चलो, मैंने 100 लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके उनकी जिंदगी बचा ली, फॉर एग्जाम्पल. योर सेल्फ एस्टीम इज गोइंग टू बूस्ट टू अनदर लेवल. जो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफ़र करते हैं, जिनको लगता है कि इनफ कॉन्फिडेंस नहीं उनमें कम्युनिकेशन का, उनके लिए सबसे इजी और सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप दूसरों की काम आए. आपको इतना अकम्पलिशमेंट आई स्वेयर फील होगी ना कि यू विल फील कि यस, आई कैन डू थिंग्स, आई कैन मेक थिंग्स हैपन, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग स्टफ, एंड that will be just one side. But the satisfaction, that ultimate sense of blessing you attain जब कोई इंसान आपको कहता है I did not give up because of you, thank you for sticking around, I feel better.
आई एम गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। और इस तरह की कितनी सारी बेसिक चीज़ें, वेरी बेसिक, इट शुड बी सो, इट शुड नॉट बी अ नॉर्म, इट शुड बी कॉमन प्रैक्टिस। इट कैन मेक योर लाइफ बेटर, the ones around you, and it can actually help us, elevate as a society, as tolerant society. Life is not meant to be perfect. ये जिंदगी एक ट्रायल है, हमारा बिलीफ है, जिंदगी में सब कुछ मिल नहीं सकता, और लेवल ऑफ फुलफिलमेंट भी कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सेल्फ वर्थ पे डाउट करना हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। द बेसिक कॉज ऑफ, बेसिक द रूट कॉज कि हम अपनी जिंदगी को बहुत अधूरा समझते हैं। एंड इफ you are going to communicate in an effective way, you are going to feel that level of accomplishment, fulfillment, that you will be able to sleep at night thinking that you did something today. You communicated with somebody and there was a result, which should not be taken for granted. It's an art, it's a tool, and if you learned it, if you are capable of doing it, even if you are learning, you are on the path, you are going to get to the level of fulfillment that we require. The level of fulfillment that can help you have a peaceful sleep. और बहुत दफ़ा जब हम किसी लो टाइम से गुजर रहे होते हैं, हम डिप्रेस होते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम इन डेली लाइफ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दैट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, दोज पीपल, द थिंग्स दे टोल्ड अस, बहुत सारी बातें, बिकॉज बातों का इम्पैक्ट तो इतना इमेंस है कि हम अगर ये रियलाइज कर लें तो हम सोचें 100 दफ़ा बोलने से पहले, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते। नो, I'd like to say before ending it कि people will say कि ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच है भाई, इतने सारी चीज़ें सोच के ज़िंदगी पे अप्लाई करना। माई लाइफ इज़ ऑलरेडी अ मैस, अब मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लॉज भी पढ़ने बैठ जाऊँ फिजिक्स के लॉज को छोड़ के, तो फिर क्या होगा? This is not something hectic, it's not gravitational physics. I'm talking physics. Okay. So it's not something extremely difficult. You need to prepare your mind पहले तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप केपेबल हैं। किसी से बात करना, किसी से बेहतर तरीके से बात करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये चीज़ रियलाइज करें कि आप ये काम कर सकते हैं। मैं तो कभी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती, आई एम गोइंग टू मैस इट अप। नो, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट। You should have that approach in your mind that you can learn, that you can improve it. Start from the basics, trust me. बोलने से पहले सोच लें, सिर्फ किसी को जज नहीं करें। एक दफ़ा कोई आपसे बात कहे तो उसको पूरी तरीके से सुन के समझ के जवाब दे दें, अपने ओपिनियन देने से पहले। बेसिक अप्रोच। एक टाइम आएगा कि आप इस चीज़ में खुद ब्लेंड हो जाएंगे। एवरीबडी इज लर्निंग, ऑब्वियसली आई एम नॉट एट दैट लेवल एट ऑल, no master communicators, we are all in process of learning. The thing is that you should accept the fact that who is making these things. I'm gonna erase it. Can you please take your host? Oh, somebody wrote something. Yeah, so you need to realize the fact that you can improve, and then ultimately कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में बेहतर कंट्रीब्यूट करने के काबिल होंगे। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदल सकता। कोई भी थेरेपिस्ट, काउंसलर, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, nobody can change your life. I am not the host actually. Can you please take care of it? Nobody can change your life in a single day, no matter how amazing or how influential it is. सबसे पहले तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपने आप को हील करना और अपने आप को चेंज करना, ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। It's something you have to do yourself. Yes, there are a lot of people who can take you to the path, who can guide you. वो रास्ता क्रॉस करना, अपने आप को कन्विंस करना, अपने माइंड को कन्विंस करना कि ये चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। Can you guys, कौन है? Okay, so yeah,
अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं that you should be able to accept this fact that you can change your life one thing a day. कतरा कतरा दरिया बनाता है. ये कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है. ये एक बहुत आसान अप्रोच है और थोड़ा थोड़ा करके हम सब अपनी भी ज़िंदगी बदल सकते हैं और दूसरों की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं. और कोई काम ये सोच के करें कि आप दूसरों के काम आना चाहते हैं तो I think God makes your path easy. I would like to end it over here, but I would really like to hear the questions. I'm going to move towards the chat box. There are already messages. Anybody has any queries, please come. Zishan had a query, I guess. Zishan, are you there? Questions? Do you guys have any queries? You can switch on your पहले अपना नाम drop कर दें please chat box में, and then I can point it out and I can communicate. How to win? Just please give me a. Thank you so much. How to win friends and influence people by Dale Carnegie's the book. I suggest everyone read. Thank you so much, Amar. Thank you for the suggestion. I hope everybody. Yes, please, Abdul Rasaq, would you like to switch on your mic or you want to drop it in the chat box? Assalamu alaikum. मेरा एक क्वेश्चन, आई एम ऑडिबल? Yeah, absolutely. या कम्युनिकेशन जितना मुझे समझ में आया, कम्युनिकेशन में आगे दो वे स्ट्रीट है, ठीक है. अगर ये किसी को कंसोल भी कर सकता है किसी के बैड डे में, या फिर इसको बहुत ज़्यादा वर्स भी कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा मिड लाइन है. इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हम लोग उसको कंसोल कर रहे हैं एक्चुअली या उसका सिचुएशन ऑफ द वर्स कर रहे हैं? बिल्कुल. ओके, थैंक यू सो मच. यस, एब्सोल्युटली टू वे है सेटअप, और यही मैंने सबसे बेसिक चीज़ जो एम्पैथी का ताल्लुक ही इससे होता है. ओके, वी हैव 10 more minutes for questions. We're gonna have to wrap it up. एम्पैथी का ताल्लुक किसी चीज़ से होता है कि हम किसी को बेहतर तौर पे सुनने की पहले सुने और समझने की कोशिश करें. जज नहीं करें, कोई एडवाइस ऑन द फर्स्ट हैंड नहीं दें, ट्यूटर नहीं करें, अपने आप को उससे बेहतर नहीं समझें. अपने लेवल पे उस इंसान को अपने लेवल पे उसके लेवल पे आके सोचें और फिर उसको कोई बात करें. देखिए, ज़रूरी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि पहली दफ़ा ही कोई भी चीज़ फ्रूटफुल हो जाए. अगर आपको लग रहा है, एक तो ऑब्जर्वेशन इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि दूसरा इंसान उस कम्युनिकेशन के बाद आपसे किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है. दैट इज व्हाट यू शुड you should observe, and then you should ask question about it, that was I helpful, did it make you feel better. Everything can be known by asking questions. So किसी चीज को फुलफिल करके बिल्कुल पीछे नहीं हट जाएं. Keep a check on the other person. I hope it was helpful. Zishan has a query. Okay, worth listening, guys. Mohammad Ammar Abbasi is the president and the person always behind people, pushing them to do better. How to detect sarcasm in every situation. How to deal with situation that people are using cover joke to say something serious in a taunting way. Toxic alert. मेरा ख्याल से कल क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरी एडवाइस ऐसी होगी कि sarcasm डिटेक्ट करना जो है ना, वाइब्स हम लोग बहुत we are much capable of detecting vibes. If somebody is making you feel uncomfortable, they are crossing your boundary. They are not being fruitful. So the best thing you can do is कि observe करें. अगर आपका दिमाग आपको ये बात बोल रहा है कि this person is making you uncomfortable, then it is a fact. Accept it. Try to make the other person understand. और अगर ऐसा नहीं हो रहा, avoid the company. Don't stay with toxic people. The best thing you can do is avoid. How to be friends with your junior and seniors? I've been struggling with this thing for a long time. I can be a good friend with people within class but not outside. Okay, Amna. यार, being friends is a very different perspective. हर इंसान, एक तो पहली बात इतना, हर इंसान की अप्रोच अलग होती है. कुछ इंट्रोवर्ट बेस्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं. So I would say कि it's not something that you should be firstly worried about. You might struggle because juniors या seniors ऐसे लोग हैं जिनसे आप डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते. Like my juniors or my seniors, हम उनसे मिलते हैं कुछ वक्त के लिए बात होती है. तो it's not something that you should feel guilty about. Try communication is the best way.
कोशिश करें कोई रिलेटेबल टॉपिक पे बात करें, और अगर आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे दूसरा इंसान सुनेगा, और हो सकता हो they are enough with friends, because that is a possibility. A lot of people don't want a lot of friends, so it's okay. You should always keep quality over quantity. जितने दोस्त हो बेहतरीन होने चाहिए अपनी क्लास के होंगे. Okay, I have a question. What should you do if people are excessively flattering you, because sometimes people use you with sweet words? Okay, very nice, Reba. अच्छा, फ्लैटरिंग तो एक अच्छी बात है अगर आप किसी के स्पिरिट्स बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. If you are getting the sort of vibes that a person is trying to use you in something, or if you are getting the negative kind of vibes, पहली दफा में जज नहीं करें. बहुत दफा हमारा जो दिमाग होता है वो हमें बातें बता रहा होता है, सिर्फ अलर्ट कर रहा होता है, बहुत बदगुमानियां भी होती हैं. तो पहली दफा में इस चीज को जज नहीं करें, थोड़ा सा टाइम दें. अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो फिर इट्स ओके, मे बी इट्स जस्ट नेगेटिव थॉट्स. एंड अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जो मेक यू थिंक लाइक दैट, देन यू शुड अवॉइड. बट फर्स्ट इंप्रेशन पे जज नहीं करें. Being an introvert, how can we do effective communication? Okay, introvert, yeah, it's difficult being an introvert. एंड सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट्स जो हैं कि उनके लिए कम्युनिकेशन मुश्किल होती है, बहुत समझते हैं. वन मोर थिंग, इंट्रोवर्ट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स की नहीं होती. तो दोनों अपनी जगह पे सफर कर रहे होते हैं. कुछ लोग बहुत बोल के पछताते हैं और कुछ लोग कम बोल के. तो इट्स ओके, सबसे पहले इट्स ओके बीइंग एन इंट्रोवर्ट. इट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल रिएक्टिंग इंटरेक्टिंग टू मच. कोशिश करें कि स्टार्ट विद द बेसिक्स. कोई एक भी दोस्त हो, अगर कोई बहुत फ्रेंडली जो आपको अच्छी वाइब दे, उससे स्टार्ट करें. Don't take it so personal and don't take it on your heart that you can't do it. You can do it, and you can. Introverts do change, adapt करते हैं लोग environment के साथ. अगर आपके पास supportive दोस्त है तो पहले उनसे शुरू करें and go gradually. If there anything left, by the way, you can talk to me. Okay, I have a question. How to stop yourself from talking too much? Oh, Reba, I feel you, girl. I can relate. Yeah, it's not good to talk too much. It's not good. I'm also learning it, but again, keep trying to remind yourself that you are not supposed to talk a lot. ठीक है, अच्छी बात है, बात करनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर चीज. और मेरे ख्याल से क्वारंटीन बहुत अच्छा टाइम है ये सोचने के लिए. तो सोचें, आप लोगों के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं. दैट्स व्हाट द थिंग आई रिमाइंड माई सेल्फ. 5 minutes, आई एम गोइंग टू रैप अप क्विकली. तो आप लोगों के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं. सो या, you can survive without talking a lot. But if I can, you can too. Ask question. Okay, if somebody is giving you the response that they don't care, although you know them since many years, और ये अगर ये pattern repeat हो रहा है, whoever you are, तो you should avoid their company. अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो फिर आप उनका दिमाग नहीं चेंज कर सकते. आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जरूर करें. एज आई सैड that you should give yourself priority. You should give yourself a priority, and if something is draining you, no matter how close that person is, you should distance yourself, because often absence जो है ना वो importance realize कराती है. I hope it's helpful. You can also reach out to me if you want. Introvert without friends, I guess the best thing you can do for is to realize that you yourself are your best friend, reflect on that, and lead a personality while following hence. Oh, coming from somebody very impactful, Amar Sheikh. Yeah, true. Being an introvert, you should realize yourself और अपनी कंपनी को खुद enjoy करना आना चाहिए. आप introvert हो या फिर extrovert, ठीक है. और it's okay if you interact with a lot of people. It's okay if you are comfortable with yourself. पहली बात तो again, respect the model, difference in the model of the words. अगर कोई इंसान ऐसे comfortable है तो कोई बात नहीं. इट्स ओके इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, लेट देम. अगर कोई क्वारंटीन एंजॉय कर रहा है तो उसको करने दें. मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत अगर आप क्वारंटीन रहते हैं. और यू डू मोल्ड योरसेल्फ. कुछ टाइम बाद सभी अडेप्ट कर जाते हैं. क्वारंटीन इज द बेस्ट टाइम टू लर्न. ओके गाइस, स्टॉप द चैट. Any other question that I'm missing, please tell me, because people have started talking in the chat box. We'll see you guys later, okay? Adina, is there any question that I missed? I have 2 minutes and 20 seconds.
Also the questions I answered, अगर आप लोग कोई भी query रह जाए, you can reach out to me. I am open for queries because I know that इधर time limited होता है और बहुत सारी बातें रह जाती हैं, so I am open. Please, you can reach out. The point is whether you're an extrovert or introvert, you need to realize and identify the true people you have. That's what matters. Yes, says the celeb herself. Very important. How to say no in a respectful manner? Yeah. अपनी बात को कहने का अंदाज बहुत मैटर करता है. कोशिश करें थोड़ी सी तमीज बांध लें नो कहने के लिए. You know, it's faking sincerity is also important. Sorry, I'm not comfortable with doing so. I think I'm not going to do it. It's okay. और इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए. If you are not comfortable with something and you are saying no, it's okay. अगर आप किसी को तमीज से नो कह रहे हैं तो you are not responsible for everything. Your mental health is a priority. Just convey to them in a nice manner. If they are unable to understand, you are not responsible. आपने अपनी बात पूरी कर दी. अगर वो हाँ कोशिश जरूर करें क्लियर करने की. Again, cross questioning matters a lot, but it should not be okay less than a minute. Whoever you are, please can you reach out to me? In fact, I got your question. I'm going to reach out to you because I need to give a detailed answer and you're going less than a minute. Thank you so much everybody who joined me today. I hope no offense. Okay, I will reach out to you. I got your problem. Thank you so much for reaching out. And yeah, Walla, we say it these days. Thank you, and I hope it was useful. Please do give your feedback Karachi University Debating Society page. And not so wonder, कुछ बात नहीं समझी, कुछ कहना चाहो. Thank you so much, and the meeting is going to go. Thank you so much for your appreciation. You guys can reach me out if there are any queries. I am open for them.